Hi friends, welcome to the Expert Edge. So in this series of shortcuts for CAT, we have started with the permutation and combination. So this is a second video for the same. So particularly in this video, we'll be seeing a very important topic, that is arrangement of peoples. Believe me, it's a very important and very easy as well, right? So this is a shortcut, that is the arrangement of people. So I divided into certain concepts. So this is the first concept, that is a concept of case of not together, right? So let's say this is the first question. What it says, there are 4 boys and 4 girls to be arranged in a row such that if no 2 girls should stand together, in how many ways this arrangement can be done. So just remember, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहा not together का, सिंपल सा ट्रिक है और सिंपल सा शॉर्टकट है, you always start with a person जो उसको नॉट टुगेदर नहीं रखना है. जैसे यहाँ पे हमको गर्ल्स नॉट टुगेदर चाहिए, सो आई विल स्टार्ट नॉट विद द गर्ल्स बट आई विल स्टार्ट अरेंजिंग whom, आई विल स्टार्ट अरेंजिंग बॉयज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, सो कितने बॉयज है? 4 बॉयज. 4 बॉयज 4 जगह कितने तरीके से अरेंज हो पाएंगे? दे कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज, राइट? The basic definition of n factorial, that n people, n places, n factorial ways it can be arranged. So 4 boys at the 4 places, let's say these are the 4 places, they can arrange themselves in 4 factorial ways. Let's say these are the boys B1, B2, B3 and B4. ठीक है, now as boys are done with, let's try to arrange girls. ये boys के बीच में कितने spacing create हुए? See that. So यहाँ पे एक left में एक 2, 3, 4 and 5. So among these 5 places you can arrange these 4 girls. They will never be together. There will be always be boy between them. So now the remaining 5 places can be arranged. So I need to put it P, not C. So out of 5 places I need to put 4 girls. So this is the answer of this. Okay. So I hope you got it. So let me repeat it. What it is? जो भी नॉट टुगेदर होगा, जैसे यहाँ पे गर्ल्स नॉट टुगेदर, विल स्टार्ट विथ होम बॉयज. सो 4 बॉयज इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड? 4 फैक्टोरियल वेज. अमॉन्ग देम हाउ मेनी स्पेसेस विल बी क्रिएटेड? स्पेस हमेशा एक एक्स्ट्रा क्रिएट होती है. तो 4 बॉयज है तो देयर विल बी 5 स्पेसेस क्रिएटेड. सो इन दिस 5 स्पेस यू कैन अरेंज एनी ऑफ दिस 4 गर्ल्स. तो अरेंजमेंट है इसलिए पी, राइट? लेट्स लुक एट द अदर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप है. 4 बॉयज 5 गर्ल्स. अगेन नो 2 गर्ल्स. सो अगेन यू विल स्टार्ट विथ होम, यू विल स्टार्ट विथ अ बॉयज ओनली. सो अगेन 4 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल वेज. वही सेम चीज B1, B2, B3 and B4. How many spaces will be created among them? 1, 2, 3, 4 and 5. So among these 5 places you can arrange this now 5 girls. So it would be 5P5. Just remember, NPN is always n factorial, right? Because what is NPN? You need to arrange n people at the n places. That is nothing but the definition of factorial. So answer of this question would be nothing but 4 factorial into 5 factorial. Right? I hope this is clear. So let's go to the next question again. Question number 3. Here 4 boys 6 girls, no 2 girls again. ठीक है, so again I'll start with the boys. So boys are 4 factorial. Again B1, B2, B3 and B4. Again spaces is 1, 2, 3, 4 and a 5. But 5 जगह है, 5 spaces, but girls are more, right? There are 6 girls. How can you make them sit at the 5 places? So answer for this question will be not possible because जगह कम है, लोग ज्यादा है, राइट? आप एक के ऊपर एक तो बिठा नहीं सकते. So answer of this question will be not possible. और हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा कुछ डेटा इनकंसिस्टेंट दिया हुआ ऑप्शन. ठीक है, if they want to trap you, they will trap you like this. So answer for this question is data inconsistent or not possible, right? सो प्लीज रिमेंबर दिस. हमेशा जब भी नॉट टुगेदर वाला क्वेश्चन है, स्टार्ट याद रखो, अपने आप आपको आ जाएगा. ठीक है, लेट्स लुक एट द अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4.
Again the 4 boys 6 girls, but this time no 2 boys should be together. So यहाँ पे boys not together चाहिए, so हम किससे शुरू करेंगे? You'll start with girls first. So how many girls are there? 6 girls. They can be arranged in how many ways? 6 factorial ways. So as these are the 6 girls, G1, G2, G3, G4, G5 and let's say G6. Spaces कितनी create होगी? Obviously one extra space will be created, right? So let us count if you want. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. In this 7 space you need to arrange 4 boys. जगह ज्यादा हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जगह खाली गई तो चलता है, बट कम जगह लोग ज्यादा नहीं हो सकते एज इन द लास्ट केस. सो एट दिस 7 प्लेसेस आई नीड टू अरेंज 4 बॉयज. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 factorial into 7p4. Okay, so I hope you got the all variations from this 4 questions of the not together. Just remember the starting point, you will never get confused. Okay, great. So now let's look at the second concept. Now this is a second concept of alternate. Many students confuse this alternate with not together wala question, right? But believe me, they are not the same, both are different. Alternate is a sub part of what you can say not together, right? But they are not same, so don't mix up the two questions, right? So question number 5 says 4 boys and 4 girls are to be arranged in a row such that girls and boys are alternate. अब alternate में 2 ही टाइप का टिपिकल क्वेश्चन आएगा. फर्स्ट, जब दोनों सेम हो. अल्टरनेट में व्हाट डिपेंड्स इज द हु इज एट द फर्स्ट प्लेस. लेट्स से इफ आई कीप बॉय एट द फर्स्ट प्लेस, एट सेकंड इट हैज टू बी गर्ल बिकॉज इट हैज टू बी अल्टरनेट, राइट? देन थर्ड हैज टू बी बॉय, देन गर्ल, थर्ड बॉय, देन गर्ल एंड सो ऑन सो फोर्थ. और अगर गर्ल फर्स्ट हो तो सेकंड मैंडेटरीली हैज टू बी बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय. दिस आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटी, राइट? देयर इज नो अदर वे. सो सिंपल है, इसमें हमेशा जो स्टार्ट होगा उससे डिपेंड करेगा. तो 4 बॉयज है तो 4 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज. 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज इनटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, व्हाई दिस इज 2 फैक्टोरियल वे आर टेकन दिस 2 फैक्टोरियल? दैट इज बिकॉज यूर लाइन इधर कैन स्टार्ट विथ अ बॉय और इट कैन स्टार्ट विथ अ गर्ल, राइट? तो सिंपल इट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2. तो जब भी अगर सेम हो, अगर x बॉयज हो और x गर्ल्स हो, आंसर इज ऑलवेज x फैक्टोरियल इंटू x फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इन केस ऑफ अल्टरनेट. ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. अब यहाँ पे क्या है? 4 बॉयज है, 5 गर्ल्स है, 1 गर्ल ज्यादा है. अब यहाँ पे चाह के भी बॉय से शुरू नहीं कर सकते लाइन, बिकॉज इम्बैलेंस है ना, राइट? Let's say if I try to do that, एक बॉय, एक गर्ल, एक बॉय, एक गर्ल, एक बॉय, एक गर्ल and last one. So here 4 boys gone and 4 girls gone. अभी भी एक गर्ल बची है, right? Where will you keep that girl? Obviously you can't keep it here. There is only one place for that girl, that it has to be at the start. So this is the only arrangement possible. So answer of this question will be 4 factorial for the boys, 5 factorial for the girls. Don't make a mistake of multiplying by 2 because here 2 cases are not possible, only 1 case is possible, right? So कभी भी अगर एक x boys हो और एक x plus 1 girls हो, ठीक है, एक का डिफरेंस हो, so answer is always x factorial into x plus 1 factorial. So just remember this small points. Okay, so this is a cases of alternate way of doing. नेक्स्ट, नाउ हियर 4 बॉयज है, 6 गर्ल्स. अब इसमें आप कुछ भी कर लो, पॉसिबल ही नहीं अल्टरनेट होना, राइट? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे ऐसे, सॉरी, इवन बॉय गर्ल, राइट? इवन इफ आई ट्राई टू पुट इट, यू विल रियलाइज 5 गर्ल्स हो गई, 4 बॉयज हो गए. ठीक है, बॉयज एग्जॉस्टेड, गर्ल्स 5 हुई, अभी भी एक गर्ल बची. अब कहीं तो उसको अरेंज करोगे, राइट? सो वहां पे ये अल्टरनेट का केस टूट जाएगा. सो जस्ट रिमेंबर, ठीक है? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अगेन नॉट पॉसिबल और डेटा इनकंसिस्टेंट, राइट? सो प्लीज रिमेंबर, अल्टरनेट का क्वेश्चन अगर कभी पूछा तो उसका आंसर 2 ही केसेस में पॉसिबल है. एक तो बोथ सेम हो, राइट? अगर बोथ सेम होगा
तो आपका आंसर होगा, इफ बोथ आर सेम तो आपका आंसर होगा x फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक का डिफरेंस होगा, वन डिफरेंस, तब भी आंसर आ सकता है, राइट, दैट इज x फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल। बट अगर एक से ज्यादा का डिफरेंस हो, so answer is always not possible or data inconsistent, as you can see. ठीक है, I hope you got the difference between the concept of not together and the concept of alternate. Very simple question there, you just need to know them beforehand. Okay, now the next concept is circular arrangement. Many of you must be knowing, but still, right, क्या होता है वो, अगर मैं लीनियर में अरेंज करता हूँ, लीनियर में n people n places, answer is always n factorial, right? But circular में what happens? Circular में n people n places, answer is always n minus 1 factorial. Why this is a factor of 1 here? Right? तो just understand the logic behind it, that will help you to tackle many questions. ठीक है, इसलिए मैं इसका एक लॉजिक शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी हम लीनियर अरेंज करते हैं, लेट्स से 4 लोग हैं, 4 लोगों को अगर मैंने लीनियरली अरेंज किया, लेट्स से दिस आर द 4 प्लेसेस, ठीक है, जस्ट इग्नोर दिस डायग्राम फॉर अ व्हाइल। दिस इज अ लेफ्ट हैंड एंड दिस इज अ राइट हैंड। सपोज यू टू आर, आप 2 दोस्त हो, एक दोस्त पहले जा रहा है, दूसरा बाद में आ रहा है, पहले वाले को दूसरे को मैसेज करना है कि एग्जैक्टली वेयर ही इज सिटिंग। सो लीनियर में तो इजीली बता सकता है कि जैसे वो पोजीशन 1, भाई आई एम सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पोजीशन, और सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, और सेकंड फ्रॉम द राइट, और एट द राइट मोस्ट पोजिशन। मैंने चारों वक्त अलग अलग डायलॉग बोला था, राइट? बट नाउ जस्ट इमेजिन कि जस्ट सेकंड, या कि these are the, थोड़ी डायग्राम स्मॉल हो रही, बट जस्ट these are the 4 positions of a circle and all chairs are identical. अब मुझे बताओ कि अगर आप पहले जा रहे हो, यू आर द फर्स्ट पर्सन, ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, सिर्फ पहले बंदे का पकड़ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे ना कोई लेफ्ट हैंड है ना राइट हैंड है, राइट, दिस इज अ सिंपल सर्कल। आप कहीं भी बैठो बात एक ही होने वाली, बिकॉज देयर इज नो डिस्टिंग्विशन, नो लेफ्ट हैंड नो राइट हैंड, कुछ नहीं बोल सकते, राइट? सो ये तब होगा जब सारे चेयर्स आइडेंटिकल है। तो फर्स्ट पर्सन कैन बी सिट इन ओनली वन वे, ही हैव नो ऑप्शन, वो कहीं पे भी बैठे बात एक ही है। लेट्स से पहला पर्सन ये यहां बैठ गया, नाउ दिस ए विल बिकम रेफरेंस फॉर अदर्स टू कम। तो ए तो बैठ गया वन वे से, तो जो सेकंड बंदा आएगा वो ए को रेफरेंस करके बता सकता है कि भाई जहां पे ए बैठा है मैं उसके अपोजिट में बैठा हूं, तो बराबर वो यहां आ जाएगा, या उसके 1 एंटी क्लॉकवाइज हो या उसके 1 क्लॉकवाइज हो, राइट? नाउ दिस ए विल बिकम रेफरेंस फॉर अदर्स टू कम। सो बाकियों के लिए जो सेकंड बंदा आएगा उसके लिए बराबर 3 ऑप्शंस रहेंगे, फिर 2 और फिर 1, राइट? सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। जब हम सर्कल में बैठाते हैं, पहले बंदे के पास हमेशा एक ही ऑप्शन होता है, बिकॉज ऑल चेयर्स आर आइडेंटिकल। सेकंड के पास सारे ऑप्शन रहना शुरू हो जाते हैं, n-1, n-2 and so on so forth. So that is why it is n-1 factorial, right? So what will be answer of this question? In how many ways 8 people can be seated around a circular table? All chairs are identical or all yellow, right? तो पहले बंदे के पास तो एक ही ऑप्शन है, वो कहीं भी बैठ जाए। लेट्स से ए है, वो बंदा यहाँ बैठ गया। अभी सेकंड के पास ये सारे पोजीशंस अलग है, राइट? दिस इज फर्स्ट फ्रॉम द क्लॉकवाइज ऑफ ए, दिस इज सेकंड फ्रॉम द क्लॉकवाइज ऑफ बी, दिस इज थर्ड फ्रॉम द क्लॉकवाइज एंड सो ऑन सो फोर्थ। So second will have 7 position, then 6, then 5 and so on so forth till 1. So it is effectively nothing but 7 factorial. So answer of this is 7 factorial. Okay? I hope you got the concept of circular arrangement. A very important but a very easy. चलो let's go to the next part. अब इसमें बताओ क्या होगा। सेम 8 लोग हैं। What we need to find is a reference. है ना, मुझे आज भी याद है एक क्वेश्चन आया था स्नैप में कि जहाँ पे ऐसा कुछ सर्कुलर टेबल दिया था और एक टेबल के ऊपर गांधी जी की फोटो दे दी थी। सो दैट विल एक्ट एज अ रेफरेंस, राइट? अपोजिट ऑफ दैट फ्रेम, सेकंड टू द क्लॉकवाइज। तो बच्चों को रेलेवेंस ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों दिया है वो पिक। सो यू जस्ट नीड टू फाइंड अ रेफरेंस। बट अब यहाँ पे सारे चेयर्स ही अलग है, तो सारे ही रेफरेंस है। आप इजीली बता सकते हो भाई वहाँ पे एक ही येलो चेयर है, मैं वहाँ बैठा हूँ, राइट? मैं पर्पल पे बैठा हूँ, मैं ग्रीन पे बैठा हूँ। तो यहाँ तो सारे चेयर डिस्टिंक्ट है। व्हेन
ऑल चेयर्स आर डिस्टिंक्ट, यू डोंट नीड टू सबट्रैक्ट वन। यहाँ पहले बंदे के पास भी सारे के सारे 8 ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट, ऑल आर डिफरेंट। सेकंड के पास फिर 7, फिर 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 8 फैक्टोरियल। डोंट सबट्रैक्ट 1, ठीक है। वो रट्टा मार के कि सर्कुलर आया तो -1 करना, ऐसा नहीं है। -1 तभी होगा व्हेन चेयर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। So here chairs are not identical, so my answer will be simply 8 factorial. Okay, now let's go to the next question. Okay, so here are a bunch of 3 questions to get you the clarity. क्या दिया इसने इंस्ट्रक्शन में? There are 10 people needed to be seated across the circular table such that the पहला question, there are 11 identical chairs. This is an important point, equally apart. So 10 लोग हैं। टेल मी फर्स्ट बंदे के पास कितने ऑप्शंस है? ऑप्शंस मीन्स चेयर के ऑप्शंस, पोजीशंस। एज देयर आर 11 डिफरेंट चेयर्स और आइडेंटिकल 11 आइडेंटिकल चेयर्स, सो ही डोंट हैव एनी रेफरेंस। तो कहीं पे भी बैठे, जो पहला बंदा है ही हैज जस्ट वन वे टू सिट, राइट, किसी एक चेयर पे बैठ गया। अब ये बंदा रेफरेंस बन जाएगा बाकियों के आने के लिए। तो जो सेकेंड पर्सन आएगा, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर फॉर हिम? एक पे तो पहला बंदा बैठा है, वो रेफरेंस बन के और सारे 10 के 10 पोजीशन अलग से सिग्निफाई कर सकता है यूजिंग दैट फर्स्ट पर्सन एज अ रेफरेंस, राइट। सो द नेक्स्ट पर्सन विल हैव 10 चॉइसेस। सिमिलरली 2 लोग बैठ गए, थर्ड विल हैव 9 चॉइसेस एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट द 10 फैक्टोरियल, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इट सेज? देयर आर 11 डिस्टिंक्ट colored chair. Distinct means we already got the reference, right? कुछ भी हो सकते हो color, distinct, red, blue, छोटी बड़ी, whatever, but all chairs are different. So obviously you can signify them. So first person will have how many options? सारे chairs distinct है तो सारे options available है उसके पास। तो पहले बंदे के पास 11, वो किसी एक पे बैठ गया तो 10 चेयर बची, दूसरे के बाद 10, फिर 9 and so on so forth, right? So this answer of this will be 11 factorial, right? I hope this first and second question are clear. Now the 12th question. There are 10 identical chairs and 1 distinct colored chair. इसका क्या होगा? Obviously answer has to be either 10 or 11 factorial, दो में से ही एक है। I hope आपको लॉजिक याद हो, जब n-1 फैक्टोरियल करते हैं सर्कुलर में, -1 क्यों करते हैं? बिकॉज पहला बंदा हमारा रेफरेंस बन जाता है वहां पे, राइट। सो यहाँ पे मेरा रेफरेंस ऑलरेडी हैज गिवन 1 डिस्टिंक्ट कलर चेयर है, राइट। तो वो मैं 1 डिस्टिंक्ट जो कलर है उसी को रेफरेंस बना के मैं बाकी पोजीशन सिग्निफाई कर सकता हूं। सपोज दैट 1 चेयर इज लेट्स से रेड एंड लेट्स से ऑल द रेस्ट चेयर्स आर ब्लैक, राइट। बट यूजिंग दिस रेड चेयर आई कैन गिव नंबरिंग टू ऑल द ब्लैक चेयर्स, राइट, कि भाई ये ब्लैक फर्स्ट फ्रॉम द क्लॉकवाइज टू द रेड, राइट, दिस इज सेकंड टू द क्लॉकवाइज टू द रेड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज द फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आई कैन सिग्निफाई ईच पोजीशन, राइट। सो जो मेरा पहला बंदा काम कर रहा था वही मेरा बंदा ये रेड चेयर काम कर रहा है, राइट। सो द फर्स्ट गाय विल हैव 11 ऑप्शंस टू सिट बिकॉज सारे चेयर्स अलग है यहाँ पे, चेयर्स इनफैक्ट पोजीशंस अलग है। सो फर्स्ट विल हैव 11 पोजीशन टू सिट, सेकंड विल बी 10 and then 9 and so on so forth. So answer of this question is again 11 factorial, right? So I hope the concept of circular is clear with this 4 to 5 questions, right? Yeah. Now let's go to the next part. This is the application of this. जो भी अब तक हमने सीखा उसका application है circular में. And believe me, you will find this question many a time across, like in the mocks and even in the CAT, right? What it says, just a second. There is a rectangular table, right, and you need to make sit 4 people on each on the longer side. So let's say 1 here, 2 here, 3 here, 4, 1, 2, 3 and a 4. तो 4 ऐसे बिठाने, 4 ऐसे बिठाने longer side, correct? अभी बहुत लोग इसमें ग्रुपिंग या कुछ कुछ करना शुरू कर देते, बट बिलीव मी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड यू नो द फंडा अर्लियर। टाइम पे these are not the impromptu questions. You can't develop the logic for such questions then and there. ये तभी आएगा जब इसको आपको पहले से पता है, बिलीव मी नॉट मोर देन 10 सेकंड, ठीक है। जस्ट सी, दिस इज एक्चुअली, अगर आप देखोगे लीनियर और सर्कुलर के बीच का केस है, राइट, बिकॉज लीनियर में लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल में भी मेरे पास ये लेफ्ट पोजीशन होगी
ये राइट होगी, राइट, बिकॉज दे विल बी सिटिंग लाइक दिस इफ दे आर सिटिंग ऑन दिस चेयर. और अगर यहाँ पे हुआ तो दिस विल बी राइट एंड दिस विल बी लेफ्ट, बिकॉज इन दिस केस दे विल बी सिटिंग लाइक दिस. सो लेफ्ट और राइट है. सेकंड, सर्कुलर की तरह ये भी क्लोज्ड फिगर है, देयर इज नॉट अ ओपन एंडेड. सो बेसिकली दिस विल कम बिटवीन दिस टू पार्ट. सो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, राइट. सो रिमेंबर अ ट्रिक और अ शॉर्टकट फॉर सच क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल सी चीज है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऑलवेज थिंक फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव. सिर्फ पहले बंदे का पोजीशन सोचो, वो आपको मिल गया तो दैट्स इट, क्वेश्चन डन. फर्स्ट पर्सन, ठीक है. तो वही मैं एनालॉजी दूंगा दो दोस्तों की. आप पहले जा रहे हो, आपका दोस्त आपके पीछे जा रहा है, आपको आपके दोस्त को मैसेज डालना है कि एग्जैक्टली आप कहाँ बैठ रहे हो. सो लेट्स से इफ आई सेलेक्ट दिस पोजीशन, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि बॉस आई एम सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड चेयर एंड देयर आर 3 चेयर्स टू माय राइट, बराबर. इसको आप क्या बोलोगे? दिस चेयर इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट. इसको बोलोगे थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट और सेकंड फ्रॉम द राइट. और इसको बोलोगे एक्सट्रीम राइट हैंड चेयर, राइट. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ठीक है. सो ही हैज नोटेड ऑल दिस कि भाई फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द राइट, लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट. ठीक है. अब वो आता है यहाँ पे, अब उसका ओरिएंटेशन हो जाएगा ऐसे, राइट. नाउ लेट्स ट्राई टू डिफाइन दिस पोजीशन. अब वो बोलेगा फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट. एज सुन एज यू से भाई आई एम सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पोजीशन, आपका दोस्त बोलेगा तूने ये सेम चीज मुझे पहले बोली है. कहाँ बोली थी उसने? एट दिस पोजीशन, राइट. ये वन वही था ना, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड. सो टेक्निकली ये दोनों पोजीशन सेम है, नॉट द चेयर. ऑब्वियसली चेयर्स आर डिफरेंट, बट पोजीशंस, इफ आई टॉक अबाउट दिस पोजीशन और दिस पोजीशन, इट इज सेम. सिमिलरली दिस इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट. ये भी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है. सो कैन यू ऑब्जर्व, भले ही वहां पे 8 चेयर्स है डिफरेंट, बट पोजीशंस पहले वाले के पास 4 ही है. ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. सो हियर, सो फर्स्ट पर्सन विल हैव हाउ मेनी ऑप्शंस टू सिट? फर्स्ट पर्सन हैज ओनली 4 वेज टू सिट. यहां तक क्लियर है? पहले बंदे का 4 आ गया. ठीक है. अब आते हैं सेकंड पर्सन पे. अब लेट्स से पहला बंदा कहाँ बैठा? लेट्स से कहीं भी बैठा. लेट्स से 2 वाले पोजीशन पे मैंने बैठा देता हूं. लेट्स से ए. लेट्स से ए इज सिटिंग एट दिस 2. ठीक है. अब ये जो सेकंड बंदा है उसके लिए सारे पोजीशंस अलग है. कैसे अलग है? How can you differentiate between this left and this left? Yes, he will say I am sitting at the extreme left hand position where A is sitting. तो बराबर ये वाले लेफ्ट पे नहीं बैठेगा, ये लेफ्ट पे आके बैठ जाएगा, राइट. और I am sitting at the extreme right hand position in the row where A is not sitting. तो he will come in this case, right? So using this A as a reference, all these remaining 7 positions can be defined uniquely. So बचे हुए जो 7 लोग हैं उनके लिए सारे सातों जगह अलग है. तो इसका आंसर होगा पहले के लिए 4 पोजीशन और बचे 7 लोग 7 फैक्टोरियल. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल ऑफ दिस. इज इट क्लियर? समझ में आया? अच्छा कंसेप्ट है, एक बार क्लियर समझ में आएगा, इट्स वेरी इजी. ठीक है. लेट्स ट्राई टू टेक द अदर क्वेश्चन, उससे क्लियर होगा. अगर सपोज इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता ये अरेंजमेंट ऐसा है, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन कि यहां पे 4 लोग हैं बट यहां पे 3 लोग हैं. अब कुछ यूनिफॉर्मिटी है क्या? नहीं, राइट. नाउ इन दिस केस आई कांट से कि ये वाला लेफ्ट और ये वाला लेफ्ट मेरा सेम होगा. ये लेफ्ट, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट. ठीक है. इसका ओरिएंटेशन ऐसा, इसका ओरिएंटेशन ऐसा. नाउ दिस लेफ्ट एंड दिस लेफ्ट इज नॉट सेम. व्हाई? आप अपने दोस्त को क्या बोलोगे? भाई आई एम सिटिंग एट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन, बट याद रखना 2 लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है. मैं उस लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे हूं जहां पे मेरे राइट में 2 चेयर्स है. या इसको डिफाइन करना हो तो मैं उस लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे हूं जहां पे मेरे राइट में 3 चेयर्स है. तो दोनों बार मैंने बात अलग बोली. यहाँ पे मेरे राइट में 2 चेयर थे, लेफ्ट में, लेफ्ट पोजीशन के राइट में, और यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन के राइट में 3 चेयर्स है. तो दिस एंड दिस इज नॉट सेम. हियर ऑल पोजीशंस आर डिफरेंट. तो ये अगर क्वेश्चन होता तो इसका आंसर होता सिंपली 7 फैक्टोरियल, राइट. सो ये छोटी छोटी चीज है,
मैंने 7-8 क्वेश्चन और लाए, बिलीव मी एट द एंड ऑफ द वीडियो विल गेट द हैंग ऑफ इट, ठीक है, जस्ट बी देयर। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला इसने, स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर पे मुझे 4 इधर बिठाने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब फिर से वही लॉजिक कि ये वाला अगर मेरा लेफ्ट मोस्ट 1 है तो ये भी 1 होगा, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, राइट। ऑल आर फेसिंग इनवर्ड, ऑब्वियसली कोई भी ऐसे ही इनवर्ड ही बैठते हैं ना, हम आउटसाइड नहीं बैठते कभी। तो सेम लॉजिक ये भी मेरा लेफ्ट मोस्ट है, राइट, ये 1 2 3 4 सेम है, सिमिलरली ये भी 1 2 3 4 सेम है। सो टेक्निकली पहले बंदे के पास 4 ही ऑप्शंस है। सो पहले बंदे के पास 4 ऑप्शन, एक बंदा कहीं भी बैठ जाए, लेट्स से ए यहाँ बैठ गया 3 पे, अब जो बचे हुए 15 पोजीशन हो सारे आप डिफाइन कर सकते हो यूजिंग ए। सो द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 15 पीपल दे विल हैव 15 फैक्टोरियल वेज। सो 4 into 15 फैक्टोरियल दैट इज डी, राइट। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में एक शॉर्टकट भी है, ठीक है, जस्ट इफ यू वांट टू रिटेन, अगर ऐसा कुछ पॉलीगॉन हो तो इसमें टोटल जितने लोग हो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन, ठीक है, तो यू कैन जस्ट गेट दैट आंसर। तो जैसे इस क्वेश्चन में कितने, इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी पीपल आर देयर, 16, सो इट वुड बी व्हाट 16 फैक्टोरियल अबव। कितने साइडेड पॉलीगॉन है ये, जहां पे बैठाने लोग 4 साइड पे बिठाने, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 4। So 16 factorial is nothing but 16 into 15 factorial, right, divided by 4. So it would be nothing but 4 into 15 factorial, ठीक है। So this will can also come handy, अगर आपको चाहिए तो इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। Let us try to apply this formula in the last question as well। इसमें भी वही था ना, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, so 8 factorial divided by divided by number of sides of the polygon in which you have to make to sit the people। तो 4 साइड है भले ही रेक्टेंगल, बट मुझे 2 ही साइड पे बिठाना है, राइट, लॉन्गर साइड पे। सो आई डिवाइड इट बाय 2 नॉट बाय 4। सो इट इज नथिंग बट 8 into 7 फैक्टोरियल बाय 2। सो आंसर ऑफ दिस इज 4 into 7 फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप दिस 2 क्वेश्चंस आर क्लियर, गुड। चलो नेक्स्ट में, नाउ दिस these are very proper CAT level mock level question, you just need to think, right। थोड़ा सोचोगे, हार्डली a 10 second question। जैसे ये देखो, इसमें क्या दिया, 8 लोगों को बिठाना है स्क्वायर में लाइक दिस। अगर आप आपके दोस्त को बताओगे, क्या बताओगे, आप 2 ही टाइप के पॉसिबिलिटी है। आप क्या बोल सकते हो, एक तो भाई मैं कॉर्नर में बैठा हूं, कौन सा कॉर्नर, आई कांट सिग्निफाई दैट, राइट, कुछ नहीं बोल सकते हो क्या, कॉर्नर को आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज एवरी इट्स अ कॉर्नर। और यू कैन से आई एम सिटिंग एट द मिडल, दिस आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटी, और कोई तीसरा तरीका ही नहीं है, राइट। सो पहला बंदा, मैंने जो कहा था ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज ट्रैक द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, बस पहले बंदे की चॉइस निकालो, रेस्ट अपने आप आ जाएंगे। तो पहले बंदे का 2 ही चॉइसेस है कि भाई मैं एक तो कॉर्नर में बैठूंगा या फिर मिडिल में बैठूंगा। इधर आई विल सिट एट दिस कॉर्नर, देयर आर 4 corners, all are identical, or the middle। So the first person has only 2 choices, whether he will sit at the corner, any of them, all are identical, or he will sit at the middle। So अगर जैसे ही पहला बंदा बैठ गया, बचे कितने, 7 लोग, it would be 7 factorial। So answer of this question is 2 into 7 factorial, right। चलो next, try this now as well, please pause the video and just give it a try, ठीक है। टिल देन मैं डायग्राम बनाता हूँ। रेक्टेंगुलर टेबल, इस बार 10 लोग बिठाने, 4 ऑन द लॉन्गर साइड एंड 1 ऑन द शॉर्टर साइड। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 और ये 1। नाउ टेल मी हाउ मेनी आइडेंटिकल पोजीशंस आर देयर। ये 1 इस 1 के बराबर है, ये 2 इस 2 के बराबर है, ये 3 इस 3 के बराबर है, राइट, और ये 4 ये 4। एंड सिमिलरली ये 5th पोजीशन इट इज आल्सो आइडेंटिकल, राइट, ये 5वीं पोजीशन। सो हाउ मेनी चॉइसेस डज अ फर्स्ट पर्सन हैव, ही हैज 5 ways to sit।
वो एक पहला बंदा कहीं भी बैठ गया, लेट्स से यहाँ बैठ गया, बचे हुए भी सारे पोजीशंस डिफरेंट हो जाएंगे. यू जस्ट नीड टू फाइंड अ रेफरेंस. जैसे ही पहला रेफरेंस मिल गया, सारे पोजीशन डिफरेंट हो जाएंगे. सो द रिमेनिंग विल बी 9 people, 9 places, 9 factorial. So answer of this question will be 9 factorial ways. Right? Okay. 17th. Yeah, good question. What it is given here? 9 people are there. I need to make them sit in a equilateral triangle. Just give me a moment. Yeah. So 3 on each of the sides. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 1, this is 2, this is 3, 1, 2 and 3. Now think, all sides are equal or same or the congruent, right? Let's try to define the position, right? मैं ऐसा कुछ बोलूँगा, I'm sitting at the leftmost corner, 2 chairs are to my right. I'm sitting in the middle, I'm sitting at the rightmost corner. सेम चीज आप यहाँ भी बोलोगे, बिकॉज जब आप ऐसे बैठोगे ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा. दिस इज द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, दिस इज 2, दिस इज 3. सिमिलरली इफ यू सिट इन दिस ओरिएंटेशन, दिस विल बी योर लेफ्ट एंड दिस विल बी योर राइट. सो दिस विल बी 1, 2 and 3. So hope you observe that the first person has only 3 options to sit. So पहले वाले के पास 3 ऑप्शन, जैसे ही वो बैठ गया, बच्चे वाले कितने पोजिशन है, 8 लोग 8 जगह, 8 factorial is answer. और you also remember that shortcut भी याद होगा तो क्या था, total number of possibilities divided by number of sides of the polygon. The total possibilities are 9 people, 9 factorial divided by कितने triangle है, तो it is 3 polygon, 3 sided polygon, तो I'll divide it by 3. So 9 into 8 factorial divided by 3. So basically 3 into 8 factorial. So either of the way you can try this question. But these questions are not to be left off, and believe me, they are the very easy questions. Don't leave these questions. Chalo, next question. Yeah, in this question again it's a triangle, but it's now isosceles triangle, right? Just let me draw the diagram. Correct? It's an isosceles triangle where these 2 sides are same and this is my unequal side. Right? Now what is saying, 8 लोगों को बिठाना है, 4 इधर 4 उधर, right? Along the 2 congruent sides. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4, right? Now many students will make a mistake of to tick the answer of this question as 4 into 7 factorial, कि ये 1 2 3 4 और ये 1 इस 1 के बराबर है, right? तो बट थोड़ा सोचोगे तो नहीं है ऐसा. जस्ट लिसन अप हियर केयरफुली. मैं क्या डायलॉग बोलूंगा ये 1 के वक्त, ठीक है? सपोज आई वांट टू डिफाइन 1. मैं 1 के लिए क्या बोलूंगा, दिस इज इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है. आई एम सिटिंग ऑन वन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड, राइट? एंड देयर आर 3 chairs टू माई राइट एंड 4 chairs टू माई लेफ्ट. यहां से ये लेफ्ट में ही पड़ेगा ना इसके. 4 chairs आर टू माई लेफ्ट. नाउ 4 chairs टू माई लेफ्ट एंड दैट टू ऑन द कॉन्ग्रुएंट साइड. ठीक है? इज द डायलॉग क्लियर? ये जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है, इसके राइट में 3 chairs है और लेफ्ट में 4 chairs है विच लाई ऑन द कॉन्ग्रुएंट साइड. अब ये यहाँ पे आप कुछ देखो क्या है, ये वाले लेफ्ट में आप क्या डायलॉग बोलोगे? ये अगर आप ऐसे ओरिएंटेशन में हो तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा. आई एम सिटिंग सच दैट देयर आर 3 chairs टू माई राइट. ठीक है, या हाफ ऑफ द डायलॉग इज राइट. पिछले बार भी आपने ये बोला था, दिस इज लेफ्ट, 3 chairs आर टू माई राइट. यहाँ पे भी 3 chairs आर टू माई राइट. ठीक है, यहाँ तक हाफ डायलॉग सही है. बट व्हाट हैपेंस ऑन द लेफ्ट? माई लेफ्ट हैंड साइड इज एम्प्टी, दैट इज अनइक्वल साइड. बट यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 4 chairs आ रहे थे, राइट? सो इसीलिए ये 1 और ये 1 सेम नहीं है.
सो ये 4 है तो ये कुछ डिफरेंट पोजीशन होगी, 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं और ये 8वीं. सो हियर ऑल ऑफ द 8 पोजीशंस आर डिस्टिंक्ट. ऑल आर डिस्टिंक्ट मीन्स तो आंसर क्या होगा? 8 पीपल 8 प्लेसेस, आंसर वुड बी 8 फैक्टोरियल. जैसे ही सारे डिस्टिंक्ट हो गए तो कोई फंडा ही नहीं, answer would be simply 8 factorial. So I hope you got the difference between the equilateral or isosceles wala, right? Just take the last question on this, and I hope just revise this question, you will get any of this type of question. This one, 8 लोग ऐसे बिठाने जहां पे 2 टेबल्स है, 4 इधर 4 उधर, ठीक है. Again I'll suggest pause the video, try to answer yourself and then see the solution of it. Again you will tend to make a mistake कि भाई एक तो 2 into 7 factorial होगा या 4 into 7 factorial होगा. Most of you try to इन दोनों में ही आएगा सबका आंसर मोस्टली. अगेन जो मैंने कहा था गाइज, वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव बिगेस्ट ट्रिक दैट इज. अगर आपको वो ट्रिक समझ में आ गई, और उसके लिए मैंने बेस्ट तरीका बताया, 2 दोस्तों की एनोलॉजी. जस्ट 2 फ्रेंड्स है, एक पहले जा रहा है एक बाद में जा रहा है, जस्ट उतना करो आंसर आ जाएगा, ठीक है. सो अगेन आई ट्राई टू डिफाइन ईच एंड एवरी पोजीशन. लेट्स से दिस पोजीशन 1. अब इस पोजीशन को कैसे डिफाइन करूंगा कि भाई मैं ऐसे टेबल पे बैठा हूं कि जब मैं यहां बैठता हूं ये वाला टेबल मेरे लेफ्ट में आता है. 1 टेबल लाइज टू माई लेफ्ट, राइट. 1 के लिए क्या बोला? 1 टेबल लाइज टू माई लेफ्ट टेबल, ठीक है. चलो उसने नोट कर लिया. ये सेम डायलॉग वो यहां बोलेगा, राइट, बिकॉज आप उल्टा यहां देखोगे तो दिस विल बी लेफ्ट. तो दिस वन एंड दिस वन इज एक्चुअली सेम. अब इस पोजीशन को क्या बोलोगे? 2. आई एम सेटिंग सच दैट 1, ये आप ऐसे ओरिएंटेशन में हो तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, राइट. सो आप ऐसे बैठे हो, ये 2 कि 1 टेबल लाइज टू माई राइट. सो 2 के लिए आई विल से दैट दिस इज राइट टेबल, मेरे टेबल बिलोंग्स टू माई राइट, ठीक है. लेट्स से दिस 3. इस 3 के लिए क्या बोलोगे? जस्ट विजुअलाइज यू आर सिटिंग लाइक दिस. I am sitting such that 1 table lies in front of me, एकदम face to face, right? ऐसे ही होगा ना. This is my table, I am sitting here like this. So जो उधर होगा वो भी मेरे front में ही आएगा. So this is basically third. I can say the table lies in front table, I can say. ये same 3 दूसरे टेबल में कहाँ पे आएगा? ये 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है. अब ये जो चौथी पोजीशन है, इसको आप क्या बोलोगे? ये 4, अगर आप जस्ट बैठे ऐसे, you will be facing inwards. You will say that this table lies to my back, right? मैं अगर ऐसे बैठा हूँ ये वाला टेबल मेरे पीछे रहेगा, right? So fourth, मैं इस तरह बैठा हूँ कि मेरा एक जो टेबल है अदर वन, that table lies to my back. Now can you see, मैंने हर बार अलग अलग चीज बोली है. पहले में बोला मेरा टेबल लेफ्ट में आता है, सेकंड में मैंने बोला टेबल मेरे राइट में आता है, थर्ड में मैंने बोला टेबल मेरे फ्रंट में आता है, फोर्थ में आई सेड कि मेरा टेबल बैक में आता है. चारों चीजें अलग है, तो दैट मीन्स ऑल द 4 पोजीशंस आर डिफरेंट, राइट. तो फर्स्ट गाय विल हैव हाउ मेनी ऑप्शंस टू सिट? 4. जैसे ही वो बैठ गया, बचे सारे पोजीशंस अलग हो जाएंगे, तो बचे 7 लोग 7 जगह 7 फैक्टोरियल. सो आंसर इज 4 into 7 फैक्टोरियल, सी ऑप्शन, राइट. सो बहुत सारे आज हमने कंसेप्ट सीखे गाइस, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इट. कुछ भी डाउट हो please let us know in the comment section. We'll be happy to answer them, right? So just to end, we'll like to have the summary of it. So arrangement of people, जो मैंने tricky वाले questions ही उठाए और tricky वाले concepts, right? So जो concept first we have learned that concept of not together. So what was the starting point of it? सबके सिर्फ start याद रखो, hook बना के रख लो दिमाग में. So जब भी not together वाला आता है, आप क्या करोगे? जो भी not together, let's say if he says boys not together, you'll start with whom? You'll start with girls. So आप girls से शुरू करोगे, फिर उसके बीच में स्पेसेस काउंट करोगे और उसके बीच में आप बॉयज को अरेंज करोगे. दैट इज अ वे ऑफ नॉट टुगेदर. अल्टरनेट में मैंने कहा था 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक तो दोनों सेम हो, सेम मतलब लेट्स से एक्स बॉयज हो, एक्स गर्ल्स हो, तो क्या आंसर होगा इसका? सिंपली एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल इंटू 2. या फिर एक का डिफरेंस हो, एक्स बॉयज हो और x+1 गर्ल्स हो, इसका भी आंसर आएगा. इसका क्या आंसर आएगा? सिंपली x फैक्टोरियल इंटू x+1 फैक्टोरियल. इंटू 2 मत करना बिकॉज वो गर्ल्स से ही शुरू होगा. और अगर 2 से ज्यादा डिफरेंस हो, मतलब 10 बॉयज 15 गर्ल्स, उनका आंसर नहीं आएगा. अल्टरनेट में इन दोनों का ही आंसर आ सकता है. इससे अगर डिफरेंस ज्यादा हो, 10 बॉयज हो 12 गर्ल्स हो, अल्टरनेट दे कैनॉट सिट. ओके. सर्कुलर अरेंजमेंट,
प्लीज रिमेंबर दैट वो n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला कब लगता है, when the chairs are identical, right? As soon as you get a reference, this formula will not be applicable, it will be n factorial. And obviously we did the application part of the it and the on the rectangular arrangement, square arrangement हमने triangle में भी लगा के देखा, right? So these are the all concepts. So I hope you like the video. अगर पसंद आए तो please like, subscribe करो. Thank you.